जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम 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 गौरनीताय श्री श्री गौरनीताय गौरनीताय श्री श्री गौरनीताय प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Water now. Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Jai Gaur Premanande Jagannath Baladev Subhadra ki Krishna Balram ki jai Shri Prabhupada ki jai Jai Gaur Premanande Is it ready? या कीर्तन को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं गला भी साथ नहीं दे रहा है हरी हरी इसलिए आप भी पोस्टपोन नहीं करना बूढ़े होने के बाद देखेंगे भक्ति करेंगे ये करेंगे so do not wait now is the time यही समय है अच्छा समय है कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते किंग कुलशेखर जी ने कहा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते Srila Prabhupada used to quote this verse all the time, many times. When you get old, हरी हरी अभी एक माता जी भी आ रही आके सुना के गई आई थिंक योर मदर अजित कृष्ण की बीमार रहती हूँ जब मंदिर आती हूँ तो मंदिर में आने से आने तक आते आते बीमार हो जाती है कमज़ोर हो जाती है लाइक दैट कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः अद्यैव today now अभी best time यही समय है जब हाथ पैर सब बॉडी माइंड सोल सब मदद कर रहा है कुछ अभी भी उपयोगी है यूज़फुल है नॉट यूज़लेस नहीं बना है यूज़लेस तो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम कृष्ण का आश्रय लो
कृष्ण त्वदीय पद पंकज, भगवान के चरण कमल, और हमारा मन है हंस। ये इसकी जोड़ी है, कमल लोटस एंड द हंस स्वान, दे आर ऑलवेज टुगेदर। द स्वान ऑलवेज हैंग्स अराउंड द लोटस। प्रार्थना वैसी ही है, मेरा मन भी आप में लगा रहे। सवै मनः कृष्ण क्या पदारविंदयो। राजा कुलशेखर ने और राजा अम्बरीश ने कहा, वो राजा अम्बरीश ने कहा था कृष्णा, या राजा कुलशेखर कह रहे हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवां बुधौ, कृपया तव अपाद पंकज स्थित धूलीसदृशं चिन्तय। अयि नंद, नंद तनुज, नंद नंदन। अब जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? नंद नंदन बनेंगे। कृष्ण विल बिकम नंद नंदन और नंद आत्मजा। नंद के घर क्या भयो? कौन भयो? नंद के घर आनंद भयो। कृष्ण के घर में क्या हुआ? आनंद हुआ। जब लोग पूछ रहे थे कृष्ण के घर में क्या हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा तो कहाँ रहे हो, जिनको पता नहीं था वो पूछ रहे थे कहाँ जा, वेयर आर यू गोइंग? तो वह जाने वाले कह रहे थे नंद के घर आनंद भयो, इसीलिए हम नंदग्राम या नंद गोकुल जा रहे, नंद महाराज के गोकुल में जा रहे हैं। वहाँ क्या हुआ? वाई देयर, वाई गो टू नंद गोकुल? नंद महाराज गोकुल, नंद गोकुल। और नंद वैसे वो गोकुल जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद देने वाला गोकुल, आनंददायी गोकुल हम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ आनंद भयो, आनंद हुआ, आनंद हुआ। कृष्ण हुए ऐसा नहीं कह रहे थे, क्या हुआ? आनंद हुआ, आनंद हुआ। तो कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण इज आनंद। अनदर नेम ऑफ कृष्ण इज आनंद, सच्चिदानंद इज आनंद। तो नंद के घर में आनंद हुआ, इसीलिए हम नंद गोकुल जा रहे, गोकुल की ओर जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवां बुधौ। तो हम कौन है? अयि नंद तनुज किंकरम। हमारी पोजीशन, वी हैव वेरी बिग पोजीशन। क्या पोजीशन हमारी? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। दिस इज अ बिग पोस्ट, बिग पोजीशन। इससे और कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकती। Krishna, on behalf of Krishna, Srila Prabhupada has given us that position, or in the parampara, हमारे गुरुजन भी हमको वो पदवी देते हैं, हमको कृष्ण का दास बनाते हैं। तो अयि नंद तनुज किंकरम, किंकर, मैं कृष्ण का कौन हूँ? कौन हूँ? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? मैं कृष्ण का
किंकर हूँ कहा, अयि नंद तनुज किंकरम, मैं कृष्ण का कौन हूँ, किंकर हूँ। किंकर, किंकर किसको कहते हैं, आपने सुना होगा। हम किंकर किसको कहते हैं, जो पूछते रहता है मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान हे कृष्ण, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। किम करोमि, किम करोमि, अहम किम करोमि, आपकी प्रसन्नता के लिए आप क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा जो सदैव पूछते रहते हैं और वैसे करते भी रहते हैं, उनको कहते हैं किंकर। किंकर फिर पुरुष हो गए किंकर, तो माताएं स्त्रियां हो गई किंकरी। कुछ किंकरियाँ बैठी है, किंकर किंकरी। संबंध, संबंध ज्ञान, संबंध अभिधेय प्रयोजन, एवरीथिंग बिगिंस विथ संबंध। कृष्ण के साथ हमारा संबंध, हाँ, संबंध ज्ञान के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। We cannot proceed one step forward, 1 inch forward, unless and until we establish our connection with Krishna, relationship with Krishna. So sambandha jnana. Then comes sambandha vidheya prayojan. Oh, हरि हरि। अयि नंदतनुज किंकरम पतितां मामिषमे भवाम बुधो। So we are fallen. So please pick me up. मुझे उठाइए और क्या कीजिए, मुझे स्थित कीजिए, आपके चरणों की धूली बनाइए। So it seems, I mean, we are here in Vrindavan, so Krishna has already picked us up. कृष्ण ने हमको पहले उठा तो लिया है। We have been picked up, and maybe not fully placed or established us at or on his lotus feet, but the process has begun. उठा तो लिया है, शायद अभी तक बिठाया नहीं है, या चरणों में स्थित पूरा, जैसे अर्जुन ने कहा स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हो गया। Now I am properly situated, ऐसे अर्जुन ने कहा। गीता का संदेश उपदेश जब सुने, but we are in process. तो संबंध, फिर अभिधेय, अभिधेय मतलब getting situated properly. राधा गोविंद की सेवा, राधा मदन मोहन, अभिधेय राधा गोविंद, संबंध अभिधेय, संबंध प्रयोजन राधा गोपीनाथ के, like that. So these are our deities also. The same Krishna. Krishna becomes Madan Mohan, Krishna is Govinda, Krishna is Gopinath. Gaudiyas, deities. Chaitanya Charitamrita, Kar, Krishnadas Kaviraj Goswami says, these are our worshipable deities. Madan Mohan, Radha Govind, Radha Gopinath. ये हमारे आराध्य देव है। हरी हरी। So anyway, आपको कुछ मैं कुछ दिखाने वाला और कुछ समझाने कहने वाला हूँ था। You have it, right?
मुझे भी और कई. So I have a little presentation. That is why the screen is here. एक सेमिनार का ये प्रस्तुतिकरण का ये लास्ट ईयर मायापुर में एक ILS करके जो एक गैदरिंग होता है, ISKCON लीडरशिप संघ. The different leaders of ISKCON, they make different presentations. तो मैंने भी किया था एक प्रेजेंटेशन, तो सोचा कि I just will share that with you, assembled disciples, devotees. So it's a little longer one. Is it? Should I? Am I in the way? हाँ? सबको दिखाई देता है? Some images will come here also. हाँ? क्या करोगे? Because the presentation is in English and I'm going to speak in Hindi. इसका अनुवाद हिंदी में. So those who, the non-Hindi or English, German, Russian speaking devotees, for their benefit they could read. And I will also try to say something in English, but mostly in Marathi. I'm not Marathi. In Hindi. तो जैसे कि आप देख रहे हो, इस सेमिनार का शीर्षक है Understanding the Super Excellence of Gaudiya Vaishnavism. हम लोग गौड़ीय वैष्णव है. तो ये सेमिनार इस बात को समझाता है, अंडरस्टैंडिंग, समझना, क्या सुपर एक्सलेंस. इसको हिंदी में नहीं बनाया हमने. हाँ हाँ, हिंदी वाला है लेकिन हिंदी में. अच्छा, इसमें होगा क्या? मेरे आप अंग्रेजी में समझते हो ना? आई थिंक मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो. यस, अंग्रेजी कितने जानते हैं? मतलब 50% जानते हैं या 60-70% जानते हैं? आई थिंक 90% ऑफ द डिवोटीज या गौड़ीय वैष्णव सर्वोपरि है. जैसे कृष्ण का मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति, मेरे बराबर का कोई नहीं, मुझसे ऊंचा कोई नहीं है. तो हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म जो है, गौड़ीय वैष्णवता, हमारे सिद्धांत इत्यादि थे, और केवल सिद्धांत या सिद्धांत भी है. तो वह हम लोग वृंदावन में रहते हैं तो हमको थोड़ा हमारी परंपरा का, गौड़ीय वैष्णविज्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए, या उसका गर्व भी होना चाहिए. गर्व से कहो हम गौड़ीय वैष्णव है, गर्व से कहो हम गौड़ीय वैष्णव. अदरवाइज द ट्रबल वृंदावन में ये भी होता है कि हम लोग और कई ढूंढने लगते हैं, और भी कहीं जाते रहते हैं, इस कुंड के तट पर या उस मठ या आश्रम में, या ये बाबा जी हो,
इज़ नो नीड, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद को चिंता रहा करती थी। तो अगर हम उसको भली भांति समझते हैं हमारे गौड़ी वैष्णव की जो श्रेष्ठता है, तो हम लोग जहाँ भी है, हम इस्कॉन में हैं, गौड़ी वैष्णव है, कृष्ण बलराम मंदिर की सेवा में है, प्रभुपाद के आंदोलन की सेवा में है, हम लोग यही स्थिर रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। ये भी उद्देश्य है इस प्रस्तुतिकरण के पीछे। तो इसका आधार वैसे इसमें आप देख ही रहे हो। ओके, तो ये अलग अलग टॉपिक्स है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व, गौड़ीय संप्रदाय, रागानुग, साधना भक्ति, गोलोक धाम की। गोलोक धाम जैसा कोई है धाम? इसके ऊपर कोई है? गोलोक के ऊपर तो कोई नहीं है। रस विचार, उसमें माधुर्य रस। और जहाँ तक ग्रंथों की बात है तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भागवतम, और भागवतम, और फिर हमारा तो चैतन्य चरितामृत भी है। प्रभुपाद तो भागवत को ग्रेजुएशन कोर्स कहते थे, लेकिन चैतन्य चरितामृत की स्टडी क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन। और कृष्णा और चैतन्य ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। गॉड हेड्स तो कई है, गॉड हुड भी कईयों की है, लेकिन सुप्रीम कौन है? कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु। और गौड़ीय वैष्णविज्म ही कृष्ण भावना है, ऐसा एक निष्कर्ष भी इसके साथ। तो जैसे ये श्री चैतन्य मंजूषा करके एक ग्रंथ है, तो उसमें ये प्रसिद्ध आप लोग सुनते रहते हो, मैं इसको मंगलाचरण में गाते रहता हूँ और भी गाते हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधवर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार्तो महान। अच्छा, वो है हमारे पास? हाँ, ओ वाह, क्या कहते हैं? इंडिकेटर या है किसी के पास? अपने घर में है, कमरे में ला सकते हो? हाँ, तुम्हारे नहीं है या नहीं पड़े हो? तो वह चैतन्य या इस मंत्र में अंतिम जो पंक्ति है उसमें कहा चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। तत्राधरों पर, ऐसे कोई श्रेष्ठ बात नहीं है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का मत है। तो एक तो आराधना करनी है, तो किसकी आराधना करे? ब्रजेश तनय की आराधना ही सर्वोपरि है। उनका धाम तद्धाम वृंदावनम ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। और आराधना की जो पद्धति है, उपासना, हम उपासक, हम लोग उपासक है, उपासना करते हैं उपास्य की। तो उपास्य है कृष्ण और उपासना है राधा रानी या गोपियों की। जो आराधना या उपासना की पद्धति है वो सर्वोपरि है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का मत है। और भागवतम ग्रंथ प्रमाण अमलम, ये सर्वश्रेष्ठ है। और प्रेम पुमार्थो महान, और प्रेम पुरुषार्थ, ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो वह अचिंत्य भेदा भेद तत्व, ये गौड़ीय वैष्णव की स्पेशलिटी, खासियत है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो यहाँ कैसे पहुँचे हम? तो कुछ 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने प्रचार किया प्रीचिंग ऑफ वॉइडिज्म। उन्होंने प्रचार किया शून्यवाद।
अंततो गत्वा किसको प्राप्त करना है? शून्य को प्राप्त करना है, शून्य बनना है, शून्य बनना है, जीरो। द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम नॉट अ हीरो बट जीरो। शून्य, शून्यवाद। फिर उस प्रचार के उपरांत फिर आ गए शिव जी आए, शंकराचार्य बने। पद्म पुराण का ये वचन है, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। ये वचन शंकराचार्य का ही है, पार्वती को कह रहे हैं। शिवा टॉकिंग टू पार्वती, व्हाट इज ही सेइंग? उन्होंने कहा मायावादम असत शास्त्रम। मायावाद कैसा शास्त्र है? असत शास्त्र है। वेरी सिंपल, और जहाँ तक लैंग्वेज है बड़ा सरल का। मायावादम, मायावाद असत शास्त्र है। और मयैव कल्पितम देवी, और ये मेरी कल्पना से, मेरी कल्पना है, शिव जी की कल्पना से उन्होंने ये मायावाद को बनाया कहो, या उसकी पुष्टि की। या फिर वे कहते हैं कलो ब्राह्मण रूपिना, मैं कलयुग में ब्राह्मण बनूंगा, ब्राह्मण। केरल में जन्म लूँगा, कालड़ी नाम का स्थान है, पदयात्रा हमारी कई बार वहाँ गई है, तो वहाँ मेरा जन्म होगा और वहाँ से मैं जन्म लेके क्या करूँगा? मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद जो असत शास्त्र है इसका मैं प्रचार करने वाला हूँ। अब तक वे कैलाश में ही है, अपने धाम में ही है, महेश धाम में। तो वहीं पर संवाद चल रहा। संवाद में उन्होंने कहा मैं आके कलयुग के प्रारंभ में मायावाद का प्रचार करूँगा। तो उनके प्रचार का सिद्धांत या लक्ष्य होता है एक, अद्वैत। मायावाद कहो या निर्गुण निराकार या अद्वैत। अद्वैत मतलब अ मतलब नहीं, अद्वैत मतलब टू, दो नहीं है। मतलब शिवात्मा और भगवान ये दो अलग अलग नहीं है, हम क्या है? एक है। ऐसा उनका सिद्धांत। ऐसा नहीं है, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे ऐसा ही। ये मायावाद है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये वैष्णववाद है। भगवान अंशी है और हम उनके अंश है। और कब तक रहेंगे? सनातन, सदा के लिए रहेंगे। हम अंश अब है और रहेंगे भी अंशी। और अंशी भगवान, भगवान को अंशी कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्, हम उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो ये निर्विशेषवाद मतलब एक, अद्वैत। तो नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो श्रील प्रभुपाद ने गौड़ी वैष्णवता का प्रचार किया। और ये प्रचार करके क्या किया उन्होंने? निर्विशेषवाद या अद्वैतवाद कहिए, मायावाद कहिए, कई नाम है उसके, अलग अलग नाम है। निराकारवाद कहिए, ये निर्विशेष मतलब भगवान के बारे में कोई विशेष, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। कोई उनका कोई विशेष नाम नहीं है, विशेष कोई काम नहीं है, उनका कोई काम धंधा ही नहीं, कोई विशेष नहीं है। वैसे वो प्रकाश ही है, ऐसा प्रकाश, वो ज्योति ही है। तो वहाँ कोई वैशिष्ट्य नहीं, कोई वैरायटी नहीं है, कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है, धाम नहीं है। मायावादियों के लिए वृंदावन डज नॉट एग्जिस्ट।
अल्टीमेटली, और कृष्ण वहाँ नहीं है, लीला नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं श्रील प्रभुपाद की। तो गौरवाणी का प्रचार किया, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार किया, और निर्विशेषवाद और शून्यवाद, इम्पर्सनलिज्म एंड वॉइडिज्म से संसार को मुक्त किया, बचाया। और हमको भी बचाया कि नहीं? तो फिर ये संप्रदाय, 4 संप्रदाय, ये प्रामाणिक है, जो वेद को प्रमाण मानते हैं, और इनको वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, जो आप देख ही रहे हो। ये 4 कैसे हैं संप्रदाय? इनका नाम ही है वैष्णव संप्रदाय, मतलब विष्णु सर्वोपरि है। डोंट गेट कंफ्यूज, विष्णु मतलब ही कृष्ण। विष्णु या वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव इज ऑल इन ऑल, वासुदेव ही सब कुछ है, या विष्णु कृष्ण नारायण भी कहो, ये सर्वोपरि है। ऐसी जिनकी मान्यता है उनको वैष्णव आचार्य कहते हैं। और ये चार वैष्णव आचार्य और फिर 4 वैष्णव संप्रदाय भी है। तो जैसे आप देख रहे हो, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये फाउंडर आचार्य कहिए, आदि आचार्य, इनसे ये 4 संप्रदाय प्रारंभ हुए। और फिर रिसेंटली फिर मध्वाचार्य कुछ 1001 साल पहले, 1001 years ago, रामानुजाचार्य प्रकट हुए। फिर तो वो लिखा है, आप देख रहे हो, तो ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा, फिर आगे मध्वाचार्य प्रकट हुए। श्री संप्रदाय लक्ष्मी से प्रारंभ होता है, श्री रामानुजाचार्य, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय निम्बार्काचार्य, और उनके सिद्धांतों को भी नाम दिए हैं। ये सारे वैष्णव सिद्धांत है। और संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते विफला मता, पद्म पुराण में कहा है। हम जिस मंत्र को स्वीकार करते हैं, फिर वो दीक्षा का मंत्र हो सकता है, या और भी मंत्र, शास्त्र मंत्रों से भरे पड़े हैं। तो संप्रदाय के बाहर का मंत्र है तो विफला मता, इज यूजलेस, कोई फल नहीं। तो मंत्र, दीक्षा के मंत्र और मंत्र इस परंपरा में ही आने चाहिए। ये परंपरा प्रमाण है, अथॉरिटी है, स्कूल ऑफ थॉट्स, प्रभुपाद स्कूल ऑफ थॉट, ये 4 स्कूल्स ऑफ थॉट कही। तो दीज आर ओके। तो वैष्णव संप्रदाय, इसमें मध्वाचार्य ने विशेष जोर दिया। दो पहले प्रचार हुआ था शून्यवाद का। लक्ष्य क्या है? शून्य, बुद्ध देव कहे। फिर समय थोड़ा बीत गया, फिर शंकराचार्य आए, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने कहा कि नॉट जीरो, एवरीथिंग इज वन। तो फिर वैष्णव आचार्य आए, उन्होंने कहा कि नॉट जीरो, नॉट वन, 2, जीव भी और भगवान भी। और तो मध्वाचार्य ने इस पर बहुत जोर दिया, सभी ने दिया, लेकिन स्पेशलिटी है मध्वाचार्य संप्रदाय की, द्वैता। तो हुआ फिर हमारा
गुड, बट अभी तो मुझे फिर आई टू टर्न अराउंड, देखते हैं जब आवश्यकता होगी तो। ओके, थैंक यू। वर्क्स? Okay. But then I wish I could see you with my back. Krishna does. कृष्ण पीठ से भी देखते हैं, पता है ना? आप नहीं समझते कृष्ण की पीठ मेरी ओर है तो चलो मैं कोका कोला पीता हूँ। चरणामृत के बजाय कृष्ण नहीं देख रहे, मेरी ओर पीठ है उनकी। तो भगवान पीठ से भी देखते हैं। सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति, सकल इंद्रिय। तो फिर हम 3-4 वैष्णव संप्रदाय है, तो फिर उन्हीं के मध्य में और एक वैसे 5वां कहा तो नहीं जा सकता, 5वां संप्रदाय, लेकिन हम भी गौड़ीय वैष्णव भी उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। और एक समय वो नहीं मानते थे गौड़ीय वैष्णवों को, क्योंकि हमारी वेदांत सूत्र पर हमारी कमेंट्री नहीं थी। और 4 संप्रदायों के आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय की का भाष्य वेदांत सूत्र पर लिखा था, और हम लोगों ने, गौड़ीय वैष्णव ने नहीं लिखा था। इसलिए जयपुर में काफ़ी समस्या, राधा गोविंद की सेवा में या गोविंद की आराधना कर सकते हो, राधा रानी की आराधना नहीं हो सकती, तो ऐसा। और आप ऑथोराइज नहीं हो, आपका वेदांत सूत्र का भाष्य दिखाइए, है नहीं है, तो आप आराधना नहीं कर सकते। तो वह श्री संप्रदाय या श्री संप्रदाय के क्या रामानंदी वे आराधना करते थे राधा गोविंद की, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों को वह अधिकार नहीं प्राप्त था। तो फिर बलदेव विद्याभूषण को वहाँ भेजा गया। उन दिनों में बलदेव विद्याभूषण जो हुआ हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो वृद्धावस्था चल रही थी, तो उनका वहाँ प्रवास करना, वहाँ पहुँचना संभव नहीं था, तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा। और तो उन्होंने कमेंट्री लिखी। इस कमेंट्री का नाम आगे आ रहा है। तो बुद्धदेव से चैतन्य महाप्रभु, उन दोनों में 2000 सालों का अवधि है, और बीच में शंकराचार्य आए। अभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो हमारा चिंत्य भेदा भेद तत्व। अब यहाँ हम ये समझाने का प्रयास किए हैं इस सेमिनार में या प्रेजेंटेशन में, ये गौड़ीय वैष्णव और अन्य जो 4 वैष्णव संप्रदाय, इनके मध्य का जो संबंध है, और उनमें भी हम कैसे थोड़े अधिक है। या चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हो, ये नवद्वीप धाम है। और अभी मैं दिखा सकता था, लेकिन which one? First one. ये नित्यानंद प्रभु है, और ये कौन होने चाहिए? जीव गोस्वामी है। ये 500 वर्ष पूर्व जब वे आए नवद्वीप, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको गाइड किया और सारा धाम को दिखाया। नवद्वीप परिक्रमा हुई। तो
तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने नवद्वीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ में एक संवाद का जिक्र करते हैं, जिसमें तो चैतन्य महाप्रभु ने निम्बार्काचार्य के साथ, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले ये सारे जो 4 संप्रदाय आचार्य है, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, और ये सभी गए थे नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले। जब वे आचार्य वहाँ गए, चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया और उनके साथ वार्तालाप भी हुआ। तो जब निम्बार्काचार्य नवद्वीप गए थे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात की। तो चैतन्य महाप्रभु ने निम्बार्काचार्य से कहा कि मैं गौड़ीय संप्रदाय में चारों संप्रदाय के हर संप्रदाय से 2 विशेष गुणों को स्वीकार करूंगा मेरे संप्रदाय में, या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, परंपरा में। तो यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे हो, श्री संप्रदाय से अनन्य भक्ति और भक्तजन सेवा, अनन्य भक्ति, ये जो भाव, अनन्य भक्ति, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, श्री कृष्ण ने कहा। तो श्री संप्रदाय में भी ये भाव है। तो ये भाव चैतन्य महाप्रभु, मैं अनन्य भक्ति स्वीकार करूँगा श्री संप्रदाय से। और भक्तजन सेवा, भक्तों की सेवा, संतों की सेवा, सर्विंग द डिवोटीज, वैष्णव सेवा, ये भी वैशिष्ट्य है श्री संप्रदाय का। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो 2 गुण, 2 वैशिष्ट्य अपने संप्रदाय में लिए। फिर मध्वाचार्य संप्रदाय से उन्होंने केवल अद्वैत का निरासन, तो मध्वाचार्य बहुत खंडन मंडन किए ये अद्वैतवाद का, और द्वैतवाद की स्थापना किए। तो उसका स्वीकार चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन और विग्रह की आराधना भी श्री संप्रदाय में, उडुपी कृष्ण, तो मध्वाचार्य स्वयं जो उडुपी कृष्ण की जो आराधना किए इस भक्ति भाव के साथ, तो ये विग्रह आराधना, नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन, ये 2 गुणों को स्वीकार किए। फिर रुद्र संप्रदाय से तदीय सर्वस्व भाव, मतलब समर्पण का भाव, वही भाव, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर, ये जो भाव है संप्रदाय रुद्र संप्रदाय से। और राग मार्ग, रुद्र संप्रदाय का राग मार्ग अपनाए। और कुमार संप्रदाय से एकांत राधिका आश्रय, कुमार संप्रदाय में भी ये अष्टकालीय लीला और ये राधिका आश्रय और गोपी भाव उनसे ले लिए। और इस प्रकार हमारा संप्रदाय है ही। और फिर इन गुणों से युक्त फिर हमारा पूर्ण हुआ, और पूर्णतर या पूर्णतम हुआ हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। रागानुग भक्ति साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की श्रेष्ठता है। साधना भक्ति के 2 प्रकार, एक वैधि साधन और रागानुग साधन। तो
ये तो सब भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी समझाए हैं, वैधि साधना और रागानुग साधना। तो हम रागानुग साधना को अपनाते हैं अधिक, या वैधि से पहुंचना है। राग अनुग, किसी भक्त का जो राग है, भाव है, उनका अनुसरण करना। ओके, तो अब कृष्ण अपने प्राकट्य के पहले ऐसा सोच रहे हैं। कृष्णा's contemplation before his descent as चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होने के पहले कृष्ण गोलोक में सोच रहे हैं। कृष्ण also thinks, कृष्ण भी सोच सकता है कि नहीं? कृष्ण, उनका भी माइंड है, हार्ट है, इज अ पर्सन। कृष्ण थिंक। तो ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला का वचन है, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। तो प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। तो मैं ऐसे करूँगा, राग मार्ग भक्ति का प्रसार करूँगा। चैतन्य, ये कृष्ण सोच रहे हैं लोक में। ये तो इसका भी बांग्ला श्लोक है, हमने यहाँ नहीं लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। कृष्ण सोच रहे, लव वीकन्ड by the sense of majesty does not satisfy me. I do not become subservient to such love. तो भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, ये जो विचार है, इससे क्या होता है, भक्त और भगवान के मध्य का जो प्रेम है वो शिथिल होता है, उसका थोड़ा दमन होता है, वो प्रकट नहीं होता कि भगवान महान है, गॉड इज़ ग्रेट। ये जो विचार है, गॉड इज़ ग्रेट तो है, लेकिन नहीं, वे नहीं है। लेकिन इसका इतना इस पर प्रकाश डालना या उसी बात का चिंतन करना भगवान का, या इच्छा प्रार्थना, कृष्णा मेरे मित्र है, लाइक दैट, कृष्णा इज माय बिलवेड, तुलसी कृष्णा प्रेयसी, प्रिय और प्रिय कर, तो देन आई एम सेटिस्फाइड। भगवान ऐसा सोच रहे हैं। हे निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। तो ये राधा दामोदर का दृश्य है। तो श्रील प्रभुपाद ये रूप गोस्वामी है और हम सभी रूपानुग है। तो श्रील प्रभुपाद को स्फूर्ति मिली, प्रेरणा हुई, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जो तैयारी कर रहे थे विदेश में जाके प्रचार करने की, तो ये सारा जो भगवान का विचार जो रहा, मैं जब प्रकट होऊंगा तो जो मेरा जो महिमा है इस पर जोर नहीं होगा, और जो सख्य भाव या वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये भावों को प्रकाशित किया जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु, हम लोग भी 72 में फर्स्ट टाइम जब मैं आया वृंदावन धाम की, तो राधा दामोदर मंदिर में, इट वाज 72 मंथ ऑफ कार्तिक। तो एवरी डे प्रभुपाद वहाँ क्या करते थे, नेक्टर ऑफ डिवोशन से क्लास चलता था। तो रूप गोस्वामी के विचार या द साइंस ऑफ भक्ति योगा, नेक्टर ऑफ डिवोशन का अंग्रेजी में इसका अनुवाद, साइंस ऑफ भक्ति योगा, भक्ति का शास्त्र। तो प्रभुपाद हम शिष्यों को
कितने शिष्य थे वहाँ? 30-40 में भी, नॉट मोर देन 50, मे बी 40-50 थे। द फर्स्ट इंटरनेशनल वृंदावन फेस्टिवल, कार्तिक महोत्सव, उसमें 40-50 डिवोटीज थे, लेकिन हम सोचते थे कितने सारे थे, सो मेनी डिवोटीज। हम क्या, सो मेनी डिवोटीज आर हियर, सो मेनी डिवोटीज आर हियर। तो कोई पूछता हाउ मेनी, ना सो मेनी, ना हाउ मेनी, 40 डिवोटीज। तो सुनने वालों को भी लगता था यस यस सो मेनी, सो रियली सो मेनी। तो हरी हरी। तो ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हमारे आचार्य रूप गोस्वामी है। तो सर्वोपरि है गोलोक धाम। गोलोक धाम की कहाँ है, उसका डिटेल नहीं डाल दिया। हाँ, आने वाला है। Is it going to come up? Yeah, I think इसमें नहीं है। पहले हमने अभी नहीं दिखा सकते। तो रस विचार, ये दिस इज गोइंग इन द स्क्रीन पर ये आ रहा है कि you are in control. Oh, this is just for me. Okay. तो ये दाशस, शांत दाशस सख्य वात्सल्य माधुर्य, इसमें आप देख रहे हो। Let's see whether this works. तो ये शांत रस में कृष्ण निष्ठा और कृष्ण तृष्णा त्याग, कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग, तृष्णा प्यास भूख या लालच या तृष्णा का त्याग, मतलब वैराग्य पाया जाता है। दास्य भक्त में ये दोनों गुण और एक वन गेट्स एडेड, वो है सेवन, सेवा भाव, इसलिए वो दास्य बनता है, दास्य भाव, दास्य रस। फिर सख्य में पहले वाले 3 गुण हैं। एक विश्रम्भ सख्य वृंदावन में, स्पेशली इन वृंदावन। विश्रम्भ क्या होता है अभी आगे थोड़ा समझाएंगे आपको। विश्रम्भ मतलब भगवान में और हम में कोई, हम एक ही है, हम एक सम है। भगवान बड़े हैं, ऊंचे हैं, श्रेष्ठ है, ये भाव नहीं, हम एक सम है, समरस उनके साथ। फिर समरस होना, इसको विश्रम्भ कहते हैं। ये बड़ा वैशिष्ट्य है भाव का। तो वात्सल्य रस में भी विश्रम्भ भी है, बाकी सब है। और पालक ज्ञान, पालक पाल्य, तो कृष्णा है पाल्य और नंद बाबा यशोदा है पालक, मतलब कृष्ण के पालक, मेंटेनर। वी मेंटेन आवर सन, हम उसका पालन, लालन पालन हम करते हैं। तो ये भाव है, पालन, पालक, ज्ञान। और माधुर्य रस में बाकी सब है ही ये गुण। और वैशिष्ट्य है निजांग दान, अपना अंग भी सर्वांग। ये गोपी या राधा रानी का वैशिष्ट्य है निजांग दान। और ये माधुर्य रस इज कंप्लीट, क्योंकि बाकी सभी जो गुण है वे भी उसमें होते हैं। और निजांग दान ये उसका वैशिष्ट्य है, विशेषता है। तो शांत रस के ये प्रभु जी एक समय शांत थे, फिर वैकुंठ गए और वहाँ उन्होंने प्रवेश द्वार पर ही क्या किया, वहाँ का जो सुगंध सौरभ है उसको सूंघ लिया। उसी के साथ उनका सारा जो शांतता है
शांति से मुक्त हो गए। मायावादी अद्वैतवादी भी शांत होता है और कुछ है नहीं, जस्ट एग्जिस्ट। तो एक समय शांत थे लेकिन बन गए, उनकी प्रगति हुई। ये दास्य रस में देखिए, दास्य भाव, भगवान का ऐश्वर्य, महिमा, बड़प्पन, गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर। अल्लाह मतलब ग्रेट, ग्रेट 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 ग्रेट। तो ये दास्य भाव में चलता रहता है। लेकिन ऐश्वर्य, अभी देखिए, ऐश्वर्य मिश्र सख्य रस, कृष्ण और अर्जुन के मध्य में, भक्तोसी में सखा चेति तदहि रहस्य उत्तमम। कृष्ण कहे अर्जुन को, तुम मेरे सखा हो। लेकिन ये सख्य ऐश्वर्य मिश्रित है। भगवान का महान होने का जो विचार या भाव है वो भी मिश्रित है सख्य रस के साथ। लेकिन ये देखिए, ये भी सख्य रस है, लेकिन ये विश्रम्भ सख्य है। कृष्ण अर्जुन के मध्य का सख्य, ऐश्वर्य मिश्रित सख्य, और ये विश्रम्भ सख्य। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अब ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य, तो कृष्ण जब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के वहाँ प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी जो माता पिता है वे प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना की उन्होंने। ऐसा कभी होता है क्या बच्चे को कोई प्रार्थना करता है? माताएं अपने बच्चों को जन्म लेते प्रार्थना किया कभी? मतलब, लेकिन ये प्रार्थना करें क्योंकि भगवान महान है, ये विचार के कारण ये। तो ये वात्सल्य है मथुरा का, या वैकुंठ में भी हो सकता है ऐसा वात्सल्य, ऐश्वर्य मिश्रित। लेकिन ये वात्सल्य वृंदावन का वात्सल्य है, विश्रम्भ वात्सल्य रस। भेद समझ रहे हो? ये विश्रम्भ, ये वृंदावन के रसों का या भक्तों के साथ जो संबंध है, संबंध ज्ञान, इसका इसमें भेद है। ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य, तो वैकुंठ में माधुर्य है, अयोध्या में माधुर्य है, इवन द्वारका में माधुर्य है। लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य, जो स्वकीय भाव, स्वकीय, वृंदावन में द्वारका में स्वकीय भाव, लेकिन परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार, लेकिन वृंदावन में परकीय भाव। तो ये विश्रम्भ माधुर्य रस। तो ये सब भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों के आधार से ये समझ में आता है। तो वही बात, परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आराधना करना चाहते हो तो कैसी आराधना करो? जैसे गोपियों ने भगवान की, राधा ने भगवान की आराधना की। और जहाँ तक ग्रंथों की बात है, या ये अभी 6वां टॉपिक चल रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो ब्रह्मा के मुख से ये 4 वेद, एक मुख से एक वेद, एक मुख से दूसरा वेद, 4 मुखों से 4 वेद तो प्रकट हुए। लेकिन वैसे ये वेदों की रचना ब्रह्मा ने नहीं की। वेद शाश्वत है, वेदास आर इटर्नल। बस उनके ब्रह्मा माध्यम बने और उनके मुख से ये। तो वैदिक जो ज्ञान है उसमें 2 विभाग है, श्रुति और स्मृति। फिर श्रुति के आगे या वेदों में 4 प्रकार के वेद है, और हर वेद में
हर वेद के 4 विभाग है और 4 डिविजन्स ऑफ ईच वेद, उनके नाम भी है, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक। तो उपनिषद ये कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, हर वेद में उपनिषद है। ये यजुर्वेदीय उपनिषद है, ये ऋग्वेदीय उपनिषद है। ऐसा तो स्मृति में वो श्रुति हुई है, स्मृति में पुराण है, इतिहास है, षड दर्शन है। तो नीचे जो षड दर्शन है, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय और पूर्व मीमांसा और वेदांत, तो इन सभी में वेदांत श्रील व्यासदेव की रचना है और ये सर्वश्रेष्ठ है। तो उसका अपना, हर एक का अपना अपना महिमा और उपयोगिता, महात्म्य है, लेकिन उन सभी में श्रेष्ठ है वेदांत, जो वेदों का सार, वेदों का सार, इसेंस ऑफ द वेदस, वेदांत या ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र भी जिसको कहते हैं, ये स्मृति ग्रंथों में आता है। तो श्रील व्यासदेव जिन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की, उन्होंने ही वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा। श्रील व्यासदेव compiled the Vedanta Sutra and he wrote commentary on Vedanta Sutra। जो कमेंट्री है वेदांत सूत्र का, जो भाष्य है, वही है श्रीमद् भागवतम। वहाँ गरुड़ पुराण में लिखा भी है, अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, अर्थ है, भाष्य है, स्पष्टीकरण है किसका, ब्रह्म सूत्र को समझाया। तो सारे वेदांत सूत्र को ही एक्सपैंड किया, उसको भाष्य लिखे श्रील व्यासदेव, और वही है श्रीमद् भागवतम। तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव, जैसे मैंने पहले कहा, और संप्रदायाचार्यों के तो वेदांत सूत्र पर भाष्य थे, लेकिन गौड़ीय वैष्णव नहीं लिख रहे थे, क्योंकि हमारी समझ थी कि भाष्य तो पहले लिखा हुआ है, जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा उन्होंने तो भाष्य लिखा है, श्रीमद् भागवतम भाष्य है, और अलग से लिखने की आवश्यकता है। इस समझ के साथ हम लोग लिख नहीं रहे थे, लेकिन फिर अंततः लिख भी दिया। एक बलदेव विद्याभूषण ने जयपुर में लिखा, राधा गोविंद की मदद से, गोविंद ने ही लिखवाया और उसका नाम दिए वे गोविंद भाष्य। तो गौड़ीय वैष्णव का वेदांत सूत्र पर जो भाष्य, उसका नाम हुआ गोविंद भाष्य। और ये पहले श्लोक में ही देखिए, जन्माद्यश्यतः, श्रीमद् भागवत का 111 जो श्लोक है, तो इससे पता चला जन्माद्यश्यतः, ये ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र है। तो भक्तों ने वैसे स्टडी की हुई है, और ऐसी स्टडी या ऐसा एक ग्रंथ भी लिखा है। ये वेदांत सूत्र, ये भागवत का ये प्रसंग को समझाता है, ये वेदांत सूत्र यहाँ है, इस कैंटो में ये वेदांत सूत्र का लगता करस्पॉन्डिंग कौन से वेदांत सूत्र का भाष्य कौन सा है, ये भी पता है। तो लेवल्स तो प्रभुपाद का है, गीता प्रिलिमिनरी स्टडी है, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, और चैतन्य चरितामृत के, तो फिर गौड़ीय वैष्णव, श्रीमद् भागवत तो सभी के 4 वैष्णव संप्रदाय आचार्य मानते ही हैं भागवत को, लेकिन हम लोग केवल भागवत को ही नहीं, भागवत से भी और एक ग्रंथ बना चैतन्य चरितामृत, तो हम लोग सुपर एक्सलेंस अब गौड़ीय वैष्णव उसके कारण भी हुआ, इस हमारे चैतन्य चरितामृत के कारण। और फिर गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर, कितना सारा, इतने सारे ग्रंथ षड गोस्वामी वृंदों ने लिखे,
और षड गोस्वामी वृंदों के उपरांत फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा और श्यामानंद ने लिखा, और कौन थे, तो श्रीनिवास आचार्य, आचार्य त्रय ऐसा कुछ नाम, आचार्य त्रय। तो षड गोस्वामियों के उपरांत 3 आचार्य हुए जो वृंदावन में थे, जिनको जीव गोस्वामी ने बंगाल भेजा। सारे ग्रंथों का लोड किया एक बैलगाड़ी में, कहा गो टू वृंदा, गो टू बंगाल। मैं कभी कोई सोचता हूँ तो प्रभुपाद मुझे भी, हम वृंदावन में थे और प्रभुपाद गो टू मायापुर, हम लोग बैलगाड़ी से, प्रभुपाद ने हमको मायापुर बंगाल की ओर भेजा, कुछ ग्रंथों के साथ भी, और स्पेशली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के साथ हमको भेजा। और फिर आचार्य त्रयों के उपरांत फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने कितने सारे ग्रंथ, कितनी सारी टीकाएँ, भाष्य लिखे हैं। इस माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं, जिन्होंने लिखा है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ, फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ग्रंथावली और टीकाएँ, और फिर श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद ने इन सारे ग्रंथों का अनुवाद भी किया है, अपने भाष्य भी लिखे हैं अंग्रेजी भाषा में। और जब अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ बन गए प्रभुपाद के, तो प्रभुपाद ने फिर कहा, नाउ प्रिंट दिस बुक्स इन एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। एक्सपैंड किया कि नहीं? उनके गुरु महाराज कहते अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो अंग्रेजी भाषा में प्रचार के लिए अंग्रेजी में जब ग्रंथ बने, प्रभुपाद राधा दामोदर में यही सेवा कर रहे थे, ट्रांसलेटिंग भागवतम इनटू इंग्लिश, और भी फिर आगे और भी ग्रंथ लिखे। तो ये सारे ग्रंथ जब बने तो प्रभुपाद अब कई सारी भाषा, अपनी अपनी भाषाओं में क्या करो, आप इसका अनुवाद करो। तो श्रील प्रभुपाद भी व्यास हो गए, उनकी व्यास पूजा हम लोग मनाते। व्यास मतलब क्या? विस्तार, एक्सपेंशन। सो प्रभुपाद एक्सपैंडेड। जो बांग्ला भाषा, संस्कृत भाषा से सीमित था ये सारा ज्ञान, प्रभुपाद ने उसको अनुवादित किया और फिर विश्व भर में फैलाया। और फिर कहा कि बुक्स आर द बेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। इसी के साथ ये गौड़ीय वैष्णवता फैल रही है। और कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु, इनका वो नहीं, हमारे पास दूसरा था ना, तो ये से परिचित हो या ईश्वर परमा कृष्ण एते चाम शकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवत का परिभाषित वाक्य है। द फाउंडेशनल वर्ड्स ऑफ भागवतम इज दिस वन। तो इसी के आधार पर सारा ग्रंथ, इसी पर आधारित है पूरा भागवत। क्या है? एते चाम शकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भी थोड़ा है आगे। तो कृष्ण की जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, गॉडहुड जो है, इसी से सिद्ध होती है। कृष्ण में 64 क्वालिटीज़ है जो और किसी में नहीं है। या देखिए, थोड़ा चार्ट के साथ समझाया है। ये ऊपर वाले 50 क्वालिटी वाले ये जीव भी है। जीवों में 50 तक गुण हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 क्वालिटीज़। कृष्ण की जो क्वालिटीज़ है 50, और जीव में भी हो सकती, लेकिन कम मात्रा में। ओके, नॉट सेम क्वांटिटी। भगवान में जो गुण है हम में भी है, लेकिन उसकी मात्रा कम है। और पांच क्वालिटी को ऐड कीजिए तो फिर ये ब्रह्मा और शिव हुए। और 5 क्वालिटी को ऐड करने से फिर
नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु सारे अवतार हुए और 4 क्वालिटीज़ ऐड करो तो फिर हो गए कृष्ण हो गए। और ये इसी के लिए कृष्ण प्रसिद्ध है। माधुर्य धाम, वृंदावन धाम के माधुर्य धाम कहते हैं। माधुर्य धाम, माधुर्य धाम क्यों? क्योंकि यहाँ कृष्ण का माधुर्य का प्राकट्य है। तो वे माधुर्य क्या कौन कौन से है, आगे है क्या? अच्छा देखते हैं। तो 4 माधुर्य तो और किसी में नहीं है, नारायण में नहीं है, राम में नहीं है, बलराम में है। बलराम, कृष्ण बलराम में है, इन दोनों भ्राताओं में है। तो इस श्लोक में लिखा है 4 जो एडिशनल क्वालिटीज़ है। तो लीला, भगवान की प्रेममयी लीला माधुर्य, लीला माधुर्य, और फिर आगे कई है। वेणु माधुर्य है, रूप माधुर्य है और प्रेम माधुर्य। तो 4 माधुर्य भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी समझाए हैं। तो द मोड्स ऑफ वर्शिप इन डिफरेंट संप्रदायस। तो श्री संप्रदाय में वे लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं। ब्रह्म संप्रदाय में केवल कृष्ण को मानते हैं। ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण को मतलब गोपियों को भी नहीं मानते, गोपियों को नहीं मानते, राधा रानी वहाँ तक नहीं पहुँचते वे, केवल कृष्ण। रुद्र संप्रदाय जो हुआ वल्लभ संप्रदाय, इसमें बाल गोपाल लड्डू गोपाल की आराधना पर जोर होता है। और कुमार संप्रदाय में राधा कृष्ण की आराधना, लेकिन स्वकीय भाव में। और फिर चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये रामानंद राय कोहूर में गोदावरी के तट पर दर्शन दिए। रामानंद राय स्वयं वहाँ के गवर्नर तो थे, लेकिन थे विशाखा थे। विशाखा वॉज अटेंडिंग ऑल द मीटिंग्स वगैरह, फ़ोन वगैरह पर विशाखा वॉज वेरी बिजी। लेकिन है तो विशाखा। चैतन्य महाप्रभु से जब मुलाकात हुई तो चैतन्य महाप्रभु अपने स्वरूप को छिपा नहीं पाए। तो स्वरूप तो रामानंद राय के सानिध्य में चैतन्य महाप्रभु को फिर अपना स्वरूप का दर्शन देना ही पड़ा, और दर्शन दिया तो ये दर्शन हुआ, राधा कृष्ण नहीं अन्य। और नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। ये गौड़ीय वैष्णव मतलब चैतन्य महाप्रभु के, और गौड़ीय वैष्णविज्म ही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। लगभग हम श्रील प्रभुपाद की, तो हमारे जो गौड़ीय वैष्णविज्म है, ये सुपर एक्सलेंट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उनके संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद बने। और उन्होंने ये जो गौड़ीय वैष्णव का जो सुपर एक्सलेंस, सर्वश्रेष्ठता है, उसका प्रचार किया, इसकी स्थापना की। तो प्रभुपाद ने जो 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन जो है, इसके माध्यम से ये जो हुआ, हम लोग जिस श्रेष्ठता का उल्लेख किए, गौड़ीय वैष्णव की श्रेष्ठता, सुपर एक्सलेंस का प्रचार और स्थापना करते हैं। 7 पर्पसेस, 7 उद्देश्य इस्कॉन के स्थापना के पीछे।
इस्कॉन की आइडियोलॉजी या सिद्धांत का ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। तो अन्य जो दो पर जो जोर दिया द्वैत, तो चार वैष्णव संप्रदाय वे कहते हैं टू टू टू, लेकिन अचिंत्य भेदा भेद मतलब टू वन टू वन टू, मतलब वही विश्रम्भता, जो विश्रम्भ है ना, विश्रम्भ प्रेम, विश्रम्भ वात्सल्य, विश्रम्भ सख्य, विश्रम्भ माधुर्य के कारण हम एक भी है, क्वालिटी है, पास में है, हम निकट है। तो दो 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 है, टू टू कह के जो दूर किया, जी और भगवान को थोड़ा अलग किया, हटाया, दूर हुआ, दूरीकरण हुआ, दूर हुआ। लेकिन गौड़ीय वैष्णव में उसको पास में लाया, उनके जो घनिष्ठता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है जी और भगवान की, इसीलिए अचिंत्य भेद और अभेद। और हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय तो है, लेकिन फिर हमारे माधवेंद्रपुरी, श्री माधवेंद्रपुरी से हमारा ब्रांचिंग, एक शाखा बन गई। तो वहाँ से हमारा अलग संप्रदाय प्रकट हुआ। और यहाँ देख रहे हो, ये श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में या भगवत गीता में भी ये सब चित्र उसमें नहीं है, नाम तो वहाँ है। तो जो लक्ष्मीपति देख रहे हो, लक्ष्मीपति नंबर 19। So this Acharya is from Madhva संप्रदाय, लक्ष्मीपति तीर्थ, और उनसे दीक्षित हुए माधवेंद्रपुरी। दीक्षा तो ली उस संप्रदाय में, लेकिन फिर हमारा गौड़ी संप्रदाय के भाव सिद्धांत उदित हुए अलग से कुछ। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ योजना बनाई, सेटिंग द सीन। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक मंच बनाया, मंच तैयार किया ताकि वे प्रकट हो सकते थे। तो मध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, और फिर बाकी परंपरा। ये माधवेंद्रपुरी प्रसिद्ध है, वृंदावन में रहे हैं, परिक्रमा किया करते थे। गोविंद कुंड के तट पर एक समय जब करते हुए बैठे थे, अयाचक वृत्ति उनकी थी, किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ भोजन वगैरह नहीं किया था। तो स्वयं ऐसा लिखा है कि कुछ स्त्रियाँ आई थी गोविंद कुंड पर जल लेने के लिए, अपने घड़े भर के ले गई। उन्होंने देखा कि कोई महात्मा बैठे हैं, कोई भोजन वगैरह नहीं किया, ऐसा उनको लगा। तो कृष्ण जब आए तो कृष्ण ने कहा कि हे हाउ डिड यू नो, मैं भूखा हूँ, मैं तुमको ऐसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि कुछ स्त्रियाँ आई थी यहाँ, उन्होंने बताया कि तुम भूखे हो, आपने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मैं भोजन लेके आया हूँ। और वैसे भगवान ने भी कहा कि मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, स्पेशली कोई अयाचक है, कोई किसी से मांगता ही नहीं, उसको मैं स्वयं देता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूँ। तो वे माधवेंद्रपुरी। और जो जतिपुर है, जतिपुरा, जब आप लोग लोठा बाबा का दर्शन करके जब यू टर्न लेते हो तो फिर गाँव आता है, उसका नाम है जतिपुरा।
मतलब यतिपुर। तो यति कौन है? यति मतलब सन्यासी, वैरागी। तो वे माधवेंद्रपुरी है। तो माधवेंद्रपुरी से नाम हुआ यतिपुर। और श्याम कुंड के तट पर एक बैठक है जहाँ माधवेंद्रपुरी की बैठक, माधवेंद्रपुरी वहाँ भी बैठा करते थे। और फिर उन्हीं को भगवान ने दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि मुझे निकालो और स्थापना करो। तो फिर अन्नकूट महोत्सव भी मनाए माधवेंद्रपुरी। और ऐसा अन्नकूट महोत्सव मनाए, सभी को स्मरण हुआ पहला वाला जो कृष्ण बलराम की उपस्थिति में पहला जो गोवर्धन पूजा के समय, जिस दिन वो पूजा बंद की, गणेश पूजा, इंद्र पूजा को रोका और गोवर्धन की पूजा हुई। तो उस दिन जो अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ, गोवर्धन की को जो भोग चढ़ाया, तो माधवेंद्रपुरी के अन्नकूट महोत्सव ने सबको स्मरण दिलाया, सबको याद हो दैट जिस दिन फिर अन्योर झुका बना, और कुछ है और कुछ है, तो सीधे तो फिर आगे भगवान पुनः स्वप्न में आए और उनको उन्होंने भेजा, चंदन लेके आओ मेरे लिए। तो माधवेंद्रपुरी गए बंगाल, पहले बंगाल गए, मायापुर, शांतिपुर गए, वहाँ द्वैताचार्य को दीक्षा दिए और भी कुछ भक्तों को दीक्षा दिए माधवेंद्रपुरी। और वहाँ से वे जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो रास्ते में ये गोपीनाथ का मंदिर आया और वहाँ ऐसी खीर खिलाई थी पुजारी ने। माधवेंद्रपुरी ने देखा भी था और क्या कर सकते थे, उन सब सुगंध से भरा हुआ था वो अवतार। तो उनको लगा कि मैं मेरे गोपाल के लिए ऐसी खीर बनाना चाहूँगा। लेकिन वो पुजारी ने स्वयं ही खा लिया सारी खीर, उसको बांटा नहीं किसी को, माधवेंद्रपुरी को कुछ नहीं मिला। शायद भगवान जानते होंगे ऐसा पुजारी है ये, इसीलिए भगवान ने पहले ही क्या किया, एक लोटा भर के पुजारी वहाँ आने के पहले और थाली उठा के ले जाने के पहले एक लोटा भर के अपने पीछे रख दिया था। तो पुजारी आ गया, खा लिया सारा प्रसाद, माधवेंद्रपुरी को कुछ नहीं मिला। तो बेचारे गए, वहाँ से चले गए, फिर भगवान को सुलाया। फिर भगवान पुनः स्वप्न में आए, पुजारी के स्वप्न में आए और फिर वो खोजते माधवेंद्रपुरी, तो मार्केट प्लेस में मिले माधवेंद्रपुरी, और भगवान ने तुम्हारे लिए खीर भेजी है। तो भगवान के लिए भगवान की खीर खाई उन्होंने। लेकिन वो सूर्योदय होने के पहले ही वहाँ से प्रस्थान किए। क्यों पता है? उन्होंने सोचा कि अब दूसरे दिन तो क्या होगा, ये टॉक ऑफ द टाउन होगा, सारे अखबारों में समाचार निकल सकता है, हम माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर की चोरी की, माधवेंद्रपुरी, इज दिस द माधवेंद्रपुरी, सारी प्रेस वगैरह आ सकती थी इंटरव्यू लेने के लिए, फोटोग्राफ खींचने के लिए। तो ऐसा लिखा है वैसे चैतन्य चरितामृत। इसीलिए माधवेंद्रपुरी ने जानबूझ के, he did not want his name, fame, glory, and so to avoid this, before daybreak or sunrise, he left for जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और फिर वहाँ से चंदन वगैरह लेके आए और माधवेंद्रपुरी वहाँ कुछ समय के लिए रुके थे रेमुना में। तो भगवान पुनः दर्शन दिए और फिर कहे कि नहीं, मुझ में और गोपाल में कोई अंतर नहीं है, मुझे ही चंदन लेपन करो। तो वैसा ही किए। और फिर माधवेंद्रपुरी ही स्टेड ऑन देयर, आई थिंक ही वाज टू ओल्ड टू रिटर्न, वृद्ध थे। तो माधवेंद्रपुरी की समाधि है
वहाँ शिरचोर गोपीनाथ मंदिर के पास हम लोग वी हैव सीन इट, जब हम पद यात्रा में गए थे और भी कई बार गए, तो वे माधवेंद्रपुरी। और ये सारी कथा जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जा रहे थे, संन्यास लिया, तो चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से फिर जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो कुछ 4-5 ही भक्त थे साथ में। तो वे जब शिरचोर गोपीनाथ मंदिर पहुँचे तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सायंकाल को माइक्रोफोन लिया और सभी को कथा सुनाई। जो कथा वे कहते हैं ईश्वरपुरी से उन्होंने सुनी थी। एक शिरचोर गोपीनाथ की, माधवेंद्रपुरी की कथा चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उपस्थित भक्तों को सुनाए। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी के ओके, what else is there? तो हम लोग रूपानुग है, हमारा डेस्टिनेशन, हम लोग कहीं स्वर्ग में वगैरह बीच में रुकते नहीं। हमारी फ्लाइट नॉन स्टॉप एंड वन वे, नो स्टॉप ओवर। कभी हॉपिंग होता है, ऐसा गौड़ी वैष्णव नहीं करते, सीधे गोलोक धाम या मायापुर धाम के। नॉन डिफरेंस वृंदावन और नवदीप मायापुर में अभेद, ये भी गौड़ी वैष्णव समझते हैं। वृंदावन धाम के, श्री कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर श्री गौनिताय की। और रस विचार of चैतन्य महाप्रभु या रूप गोस्वामी, मंजरी, रूप मंजरी थे वे, रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे, तो उन्हीं से सारा मंजरी, गोपी भाव, माधुर्य रस और सारा ये हमारा लिटरेचर, वांग्मय, गौड़ी वैष्णव, बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद का है। ये सारे हमारे जीवन के आधार है। प्रभुपाद बुक्स, सारा गौड़ी वैष्णव सिद्धांत, लिटरेचर, और फिर प्रीचिंग इज एसेंस, ये भी है। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। इस्कॉन के वैसे ये फाउंडर है। इस्कॉन का फाउंडेशन 500 years ago फाउंडेशन हुआ। संकीर्तनैक पितरो, फाउंडिंग फादर गौर नित्यानंद, कृष्ण बलराम बने गौर नित्यानंद, और फिर प्रभुपाद को निमित्त बनाए, सेनापति भक्त बनाए और इस्कॉन की स्थापना करवाए। ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, फिर उसके अंतर्गत हम वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल भी मनाते हैं। आ रहा है इधर 17 तारीख से, 17 सितंबर से 5-6 दिनों तक, from 17 September is World Holy Name Festival. Vrindavan also has to celebrate. I think they had been doing it. तो आप लोग इसमें सम्मिलित हो जाओ। Chanting इस बेसिस हमारा प्रातःकाल से शुरू होती है।
कीर्तन मेले हो रहे हैं, होली नेम रिट्रीट्स हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम